हम उसके बारे में हम देखें. We are trying to gather the material, right? The material that's handy and instrumental one to help you out in your upcoming competition. Yeah, I mean, the mega competition, the grand competition that will design your life, that will design your destiny. So, see, one thing I should tell you, please. Sometimes, sometimes it happens so miraculously and amazingly, totally unexpectedly. Something happens when people appear in such grand or mega competitive exams. You will see such students, get selected or get qualified seats for the area which we hardly expect or imagine them to be. While it is not so that they just manage to qualify that seat or that qualification on the basis of forgery or unfair means or cheating or whatsoever. No, sometimes it happens on the basis of students' ethics, students' involvement in the study, their devotion towards study, commitment towards study, honesty towards study. They have they have stayed with study cautiously, spend each and every moment for the sake of their career. So in the end, they are blessed with boundless blessings by Almighty Allah. See, this happens. So it is not so that one who is exceptionally well will get. Of course, it's a due right to be blessed. But the other thing that is also a very inclusive element. You should not reject it. That is your commitment, devotion, your manners, your ethics, right? Or your cordiality towards the subject, towards the field, towards the journey you have spent. So see, the best judge, Almighty Allah, is monitoring everything. To what extent? To what extent you are loyal to your cause, to your work, and if you are really praying, and if you really intend to be, by God, by the grace of Almighty Allah, you will be rewarded, you will be prized. So don't be reckless, careless, or don't be hopeless, or don't kill your expectations. The gratitude of God. People mostly, happen to be hopeless. I say it is an ill feeling that occur in the hearts of those who are optimistic, who are hopeless, who always surrender, and who have no belief in God, in themselves as well. So be gratitude, be gracious, and be pleasant. Okay, be hopeful that you will be given that achievement. But try to promote your habits. मैंने मैं मतलब आपको एक बार बार ये शायद बात पहले भी बताई होगी हैबिट्स के हवाले से कि अगर कोई अच्छा इंसान होता है, अगर उसकी हैबिट्स अच्छी हैं, तो वो अगर जो मट्टी होती है उस मट्टी को हाथ लगाता है तो वो मट्टी सोना हो जाती है. लोग बोलते हैं भाई हम इतनी मेहनत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होता. हाँ, थोड़ा ये करते वो करते हो तो सब कुछ हो जाता है, पता नहीं क्या है. तो ये बातें जरूर हैं. मेहनत है, मैं ये नहीं कहता कि मेहनत को एक्सक्लूड करो, मतलब साइड लाइन कर दो मेहनत को, नहीं. ये मतलब सब चीजें हैं पैरेलल, सब चीजें पैरेलल होती है. देखो, मतलब हर चीज स्टूडेंट को भी फेस तब मिलेगा जब टीचर भी उस एक्सटेंट से कम्युनिकेट करेगा. पेशेंट को भी तब फेज मिलता है जब डॉक्टर मतलब उस एक्सटेंट या उस स्पिरिट से जो है ना मतलब देगा. आप देखो मेडिसिन भले डॉक्टर पूरी पता नहीं कितनी महंगी लिखी, लेकिन वो बात करने में रूड हो है ना, सब चित्तो लगो पे खराब मुझे बिहेवियर जो है ना होना मरीज के भले उनकी बीमारी की तशखीस थी वने डायग्नोस थी वने मेडिसिन पूरी लिखी दे, लेकिन मरीज ठीक कौन थे.
पता है क्या बोलेगा वो पेशेंट, ये डॉक्टर इसके बाद लेने देना नहीं, बस मुझे इसकी दवाई नहीं खानी, क्योंकि उसका रवैया ऐसा। तो ये चीजें बहुत सारी काउंट होती है हमारी। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता कि कोई ऐसा, लेकिन आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। You are innocent, you are unaware, you don't have experience to face all these things to accomplish your achievement. You should contain all these heavenly elements in your life. By God, you will get, you will embrace and assume whatsoever you are desiring for a very long time. You will. I am hopeful because I have seen with my own eyes. I have experienced of hundreds of such people in my life. Okay, out two, I mean, sides. One who were exceptionally well, but somehow they were inane people. On the other hand, were intelligent, were balanced, moderate, disciplined, with qualities in their life, and get the reward from God. So you should try to balance the equation of your life, the chemistry of your life. Hopefully you will get, because everything is for you from God. So none of any other creature come to be given any prize. But it is for you. So hopefully you will get, but you need to do something like that. Let's come to discuss please our topic. तो टॉपिक पे भी हम जो है वो बात करें। अब देखो, आप कहते हैं हमें रिलेटिव प्रोनाउन जो अभी रहता है वो रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारा, अब वार्ड से शुरू करें। देखो, वार्ड एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है, हालांकि हमने जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस की बात की है पहले, तो वो एंटीसीडेंट के बगैर नहीं इस्तेमाल हुए। यानी सबसे पहले हमने हु लिया था, तो इधर देखो जो वर्ड आया उसको हमने एंटीसीडेंट, जो वर्ड माना नाउन, इधर जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा था ना, उसको हमने एंटीसीडेंट कहा। हमने होम के बाद के एग्जांपल्स प्रैक्टिस की, ठीक है ना। हाँ, माना क्लोज, लेकिन हम जो है इधर लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, तो इधर लेफ्ट साइड में देखो, यानी एंटीसीडेंट माना कोई नाउन वगैरह था, हमने विच के बारे में पढ़ा, इधर देखो कोई ना कोई नाउन आ रहा था, माना इधर देखो स्टूडेंट हमने लिखा, इधर कोई हमने मेन लिखा, या इधर हमने बुक लिखा, इस तरीके से कोई ना कोई देखो एंटीसीडेंट आ रहा था, ठीक है ना। ये जो हमने अल्फाज पढ़े। लेकिन वाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो इधर बगैर एंटीसीडेंट के इस्तेमाल होता है, कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, रिलेट भी कर लेता है, दो सेंटेंस को रिलेट भी कर लेता है, लेकिन बगैर किसी एंटीसीडेंट, इधर एंटीसीडेंट उसका होता नहीं, रिलेटिव हो जाता है। तो आप मुझे बताएंगे ये कैसे ऐसा होता है, मतलब ये कोई मौजूदा होता है क्या, किस तरीके से होता है? यानी वाट जो खुद मना पूछता है या कुछ पता नहीं होता, तो ये किस तरीके से हम मना बनाए कि शाबाश। देखो, आई नो, मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से होता है। एक एग्जांपल बोले ले, आई नो व्हाट यू वांट टू आस्क। देखो ऐसे, आई नो व्हाट यू वांट टू आस्क मी, ठीक है, मुझे पता है कि आप क्या पूछना चाहते हो। तो क्लोज हो गया, दो हमारा सेंटेंस क्लोज को ज्वाइन करता है, सब्जेक्ट वर्ब एक ये हुआ, इधर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। देखो ये इस तरीके से। और इधर देखो वाला है कोई एंटीसीडेंट, नाउन वगैरह कोई है नहीं है, इसलिए तो ये इस्तेमाल होता है, आई नो व्हाट यू वांट टू आस्क मी, ठीक है, आई नो व्हाट यू वांट टू आस्क। ये तो ठीक है, नहीं बोले इधर, क्योंकि इधर हम कुछ समथिंग की बात करते हैं, वो हमने नहीं ली। मैं अगर लिखूं आई नो व्हाट यू वांट टू आस्क आंसर या इंग्लिश या ग्रामर, तो ये गलत हो जाता है। सुनो, अगर मैं लिखता रहेगा आई नो व्हाट यू वांट टू आस्क, इधर मैं लिखूं आस्क अ मीनिंग ऑफ द वर्ड, अ मीनिंग ऑफ द वर्ड, अगर मैं ऐसा लिखूं ना, अब ये गलत है। गलत है, क्यों गलत है?
क्योंकि व्हाट माना मैं कह रहा हूं कि आई नो व्हाट यू वांट टू आस्क, माना मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हो ना, वो पता पता है, लेकिन है क्या वो पता नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, उसका दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता भी नहीं है, जब आपको पता भी नहीं है और आपने बता भी दिया है, तो ये नहीं होगा। ये बता दिया मैंने कि आई नो व्हाट यू वांट टू आस्क मी, मीनिंग ऑफ द वर्ड, भाई फिर व्हाट क्यों लगाया आपने? तो फिर व्हाट आएगा नहीं, क्योंकि व्हाट तब आएगा जब पता ना हो, ठीक है ना, जब पता ना हो कि किस चीज के बारे में आप विविडली क्लियरली बता रहे हो। तो इधर मैंने देखो जवाब दे दिया, इधर में ना जैसे कि मैंने आंसर दे दिया कि जो आप चाहते हो पूछना, वो आप एक लफ्ज की मीनिंग पूछना चाहते हो, तो ये नहीं आएगा। व्हाट मतलब समथिंग के लिए आता है, तो समथिंग ऑब्जेक्ट ना रखे, बाकी ये पर्सन का है, ये भले पड़ा रहे, आई नो व्हाट यू वांट टू आस्क मी, लेकिन ये ना रहे। हाँ तो दैट लगा लो, वो फिर चेंज हो जाएगा, व्हाट ना रखो, लेकिन फिर दैट को वो चाहिए, मैंने हाँ एंटीसीडेंट वगैरह वो लिखे। अच्छा अब इस पे बनाए कुछ सेंटेंसेस, कुछ ऐसे एग्जांपल्स दें जिसमें व्हाट से पहले एंटीसीडेंट ना आए, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखो, इधर लिखता हूं, देखो आई हैव फाउंड, आई फाउंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अब बताना नहीं कि क्या, क्योंकि बताना नहीं है ना, व्हाट तब इस्तेमाल होगा, बताना हो तो हम इधर ही लिख लें, एंटीसीडेंट में दे दें कि आई फाउंड कीज, आई फाउंड बुक्स, तो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। बताने वाली बात इनमें देखो, बताने वाली बात डिस्क्लोज करने वाली कि कौन सा एंटीसीडेंट की आप बात कर रहे हो, तो वो इनमें इनमें पता नहीं है क्या, ये कहता है कि वो मुझे मिल गया जो आप जिसकी आप तलाश में थे, या जिसकी आप तलाश में थे, वो मैंने ही जो है वो डिस्कवर किया है। तो आई हैव फाउंड व्हाट यू वर लुकिंग फॉर, ये फॉर लगा लो। देखो ये क्वेश्चन नहीं है, नहीं माना इंट्रोगेटिव नहीं है। देखो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो अलग होता है, जैसे व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फेवरेट डे, ठीक है ना, हम इस तरीके से वो अलग होता है और एक ही क्लोज होता है। इसमें देखो दो दो क्लोज, लेकिन पता नहीं कि क्या, है ना, पता नहीं कि क्या, तो ये होता है इधर। अच्छा जैसे आप अगर देखो, अगर आप ऐसा लिखते हो आई हैव, आई हैव इधर देखो, आई हैव अचीव्ड, आई हैव अचीव्ड माय एम व्हाट आई वांट, देखो आई हैव अचीव्ड माय एम व्हाट आई वांटेड टू, मैंने इतना पढ़े, बिल्कुल सही है। अगर पूरा लिखना चाहते हो गलत नहीं है कि व्हाट आई वांटेड टू अचीव वगैरह, ठीक है ना, लेकिन ये भी सही है इतना, क्योंकि आगे जो आएगा ना वर्ब वो उस हिसाब से आ जाता है। आई हैव अचीव्ड माय एम व्हाट आई वांटेड टू, अब गलत है माना, हाँ ठीक है ना भाई, अब ये गलत है, आपने क्या किया है, आपने एंटीसीडेंट दे दिया, इसको आपने नाउन दे दिया। अब या तो क्या करें, दो तरीके हैं आपको इस सेंटेंस को सही करने के, दो तरीके, कौन से दो हैं, या तो इसको हटा दो एंटीसीडेंट को, सही हो जाएगा। आप कहते हैं नहीं सर एंटीसीडेंट भले पढ़ा रहे, व्हाट को हटा दें, तो इधर कोई दूसरा रिलेटिव रखो, माय एम के हिसाब से रख लो, दैट लगाओ, विच लगाओ, विच भी सही हो जाएगा। आई हैव अचीव्ड माय एम विच आई वांटेड टू, दैट आई वांटेड टू, ठीक है ना, लेकिन व्हाट नहीं आएगा, भले समथिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एंटीसीडेंट नहीं कैरी करता, तो ना लगाएं, दोनों लग जाएंगे, विच और व्हाट, तो सॉरी दैट, ये ना लगाएं, ये आपका गलत, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अभी जो है ये हमारी मिस्टेक, ये एरर है, इधर कोई आप विच या दैट, ये दोनों एक ही बात है, सुनो, विच और दैट दोनों एक ही बात है, इनमें फर्क फिर कब होता है ना। अभी इससे पहले जो हमने दैट दैट देखो कितना किया, वो क्यों किया हमने इतना, स्पेसिफाई करने के लिए। ये अगर कोई चीज पहले से स्पेसिफाई हो रही है ना, तब हम लगाते हैं द ओनली, देखो द ओनली बस, द ओनली है तो दैट वो है, वो द ओनली द स्पेसिफिकेशन होती है तब, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द बेस्ट,
वो जो मतलब सबसे, तो देखो तब लगा रहे दैट। तो पहले से स्पेसिफाई कोई नाउन होता है तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम दैट लगाते हैं, इसीलिए दैट को प्रीफर किया जाता था। लेकिन अगर नहीं है तो आपके पास ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, दोनों सही, गलत नहीं है, क्योंकि पीपल के लिए भी इस्तेमाल होता है, थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आप कोई बता दें एग्जाम्पल? शाबाश, मतलब हार्ट वाला सही, द सेम, तो फिर वो तो देखो मना, एक तो ये द सेम जो है ना ये एडजेक्टिव है, सही है, मतलब सही है, आपने लिखा नहीं है एक अलग बात है, लेकिन द सेम जो है ना वो एडजेक्टिव है। अब उसको नाउन वगैरह दें, अननोन है ना, तो आप मतलब लगाना पड़ेगा ना। मिसाल के तौर पर मैं कोई एडजेक्टिव लिखूं और उसको नाउन ना दूं, तो मतलब वो एरर मेरी तरफ से है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट तो है ना। जैसे देखो मैं बोलूं आई हैव माई, तो आप बोल रहे हैं सर अभी माई मतलब कुछ तो लिखो, कोट मार्कर बोर्ड, मैं बोलूंगा अभी मुझे तो पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो माना हम कर रहे हैं ना, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट तो है, जरूरी है कि भाई उसके साथ लिखना, वो नहीं दे रहे, इसे अभी आ रही है स्ट्रक्चर में आपको बताता हूँ। तो इनके लिए माना ये रखना है, देखो माना जरूरी है। मीनिंग वगैरह में सब कुछ हमने पहले भी कहा है, आ जाती है मीनिंग, निकल आती है, लेकिन स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट जो दूसरी होती है वो हमें माना बिल्कुल संभल के चलना पड़ेगा। तो ये जो होता है प्लीज ये कैरी नहीं करता। आप खुद और भी जितने एग्जांपल्स बनाए जल्दी आप बना सकते हो, मैं आगे चलो हूज पढ़ाऊं भले, ठीक है। अब सेकंड उसके बाद है हूज। देखो एक हूज ऐसा है और दूसरा देखो हूज, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी काम होता नहीं है बिल्कुल। एक हूज ये, दूसरा ये, दोनों अल्फाज सही है, दोनों इस्तेमाल होने वाले हैं। आप मुझे डिफरेंस बताएंगे कि दोनों में कौन सा फर्क है? इसका मतलब क्या, इसका क्या? ये जो हुज है, देखो ये जो हुज है ना, ये पजेसिव वर्ड है, ठीक है ना, ये जो हुज है ये पजेसिव वर्ड है, और ये जो हुज है ये एक कॉन्ट्रैक्शन है। ये जो हुज है ना, ये है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि ये सवाल पूछने के लिए सिर्फ आता है, आप इसको माना रिलेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे देखो, हियर इज अ स्टूडेंट हु इज नाइस, हु इज टैलेंटेड, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। देखो हियर इज अ स्टूडेंट who's who is talented, who is talented, is है ना, is, तो आप ऐसा लिखें ऐसे, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन है, इज की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, हम ऐसे लिखते हैं। जैसे देखो ना, देखो ही इज है तो कैसे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन, हाँ ना, इज ऐसे लिखते हैं। तो ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। एक्चुअली हु जो होता है, हु होम जो होता है, उसका पॉसेसिव ये हुज है। जैसे ही होता है ना, ही का पॉसेसिव हिज होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो हु का पॉसेसिव हुज, हु का ऑब्जेक्ट होम, और हु खुद जो है वो सब्जेक्ट। तो अब देखो ये जो है ये हुज जो इस्तेमाल होगा सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर, एक बात ध्यान में रखो, ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा। जैसे बाकी हमारे प्रोनाउंस हो रहे थे, ये हुज इधर एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन देखना। देखो एग्जांपल्स में आपको दे रहा हूं, इधर देखें, वी हैव, we have enrolled such students, देखना, we have enrolled such students whose talent is, whose talent is praiseworthy। praiseworthy किसको कहते हैं? तारीफ के लायक, ठीक है। we have enrolled such students whose talent is praiseworthy। तो अब आप देखो इधर एक दो बातें थोड़ी समझ, मैंने अभी कहा ना कि जितने रिलेटिव प्रोनाउंस हमने इस्तेमाल किए थे ना, तो जो वर्ब हम लगा रहे थे एंटीसीडेंट के मुताबिक वर्ब लगाते थे।
भाई आप खुद देखो, इधर देखो, एक मिनट पीछे देखिए, ये अ स्टूडेंट है, तो हमने अ स्टूडेंट इधर इज कर दिया या वाज कर दिया या क्या, क्योंकि हमने एंटीसीडेंट को देख के वर्ब लगाया, ठीक है। या मेन है, मैंने एम ही एन करो, चलो थोड़ा प्लूरल करते हैं मतलब सीखने के लिए। मेन होम, ठीक है, मेन होम आपने कर लिया, तो इसको क्लोज चाहिए, इसको तो क्लोज चाहिए जाहिर है, तो मेन होम आई, देखो मेन होम आई मेट वर्क, अब इधर क्या करना पड़ेगा, मेन होम आई मेट, इधर ऐसा करें, वो कर दें, इधर ऐसा करेंगे तब सही होगा या नहीं, मेन हु आई मेट वर, इधर अगर ये लगाए सही है गलत है, होम ही आएगा, हाँ, क्योंकि इसके लिए आ गया, ये वर्ब पूरे हो जाते हैं, वर्ब तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन कैसे इधर हु लिखेंगे ये आए, बनेगा या नहीं, हु अगर लिखे मिसाल के तौर पर तो कैसे लिखें, इससे पहले क्लोज लिखना पड़ेगा, देयर आर मेन हु आई मेट, हाँ सही है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका, देयर आर, देयर आर या देयर वर मेन हु आई मेट वर लिसनिंग टू द म्यूजिक या लिसनिंग टू द लेक्चर्स, तो हो जाएगा, अभी भी आएगा, अभी कैसे आएगा, अब इसका वर्ब मिल गया इसको, अब ऐसा ना करो देर हो जाएगी, अब इसका वर्ब इधर रहा नहीं बाकी, अब आपने हु लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि वर्ब एक्स्ट्रा आपके पास पड़ा है, वो अब नहीं आएगा, क्योंकि पहले एमियन था ना, इधर वर्ब नहीं था, अब वर्ब एमियन, देखो ये वर्ब आया, ये सब्जेक्ट हो गया, मतलब ये कोटा पूरी, ये कोटा पूरी, अब बचा क्या, अब इसके लिए क्या रखें, सब्जेक्ट कौन सा रखें, हु रखेंगे तब होगा, इसमें थोड़ा वर्ब पहले पास का कर दो तो और अच्छा हो जाए, करेक्ट हो जाएगा, तो देयर वर मेन हु आई मेट वर अटेंडिंग द प्रोग्राम वर अटेंडिंग द फंक्शन, तो हमने अभी वर्ब क्यों लगाया, बात ये कर रहे थे एक्चुअली, क्योंकि एंटीसीडेंट आपका प्लूरल है, तो जैसा एंटीसीडेंट था वैसा हम लगा रहे थे, ठीक है, लेकिन हुज में देखो ऐसा नहीं है, शाबाश, हाँ, हुज एडजेक्टिव है, और उसके बाद जैसा नाउन आएगा वैसा वर्ब होगा, जैसा नाउन आएगा वैसा वर्ब होगा, वी हैव नोट सच, अच्छा हुज जो आप इस्तेमाल करेंगे समबडी समथिंग दोनों के लिए कर सकते हो, देखो हुज, हु हमने इस्तेमाल किया उसी पीपल के लिए, विच को अलग किया, लेकिन अब ये हुज जो है ना, इधर अगर कोई कार आ जाए, क्लास, कोई थिंग भी आ जाए तो भी लगा सकते हो, तो भी लगा सकते हो, ठीक है, और पीपल के लिए भी यूज कर सकते हो, थिंग्स के लिए भी, लेकिन ये पजेसिव वर्ड है, और पोजीशन इसका जो होगा ये इसके साथ होगा, तो ये नाउन होगा इधर, फिर माना ये हुज होगा एडजेक्टिव, फिर नाउन होगा, ठीक है, नाउन हुज फिर नाउन और फिर एडजेक्टिव इसको बोलेंगे, फिर जो नाउन होगा, आप देखो ना हमने पहले भी पढ़े वर्ड्स, प्लीज सुनो, थोड़ा सुनो समझो, जैसे मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया पुलिस, मैंने कहा भाई पुलिस के साथ आर लगाओ वर लगाओ, मैंने आपको वर्ड पढ़ाया केटल, केटल के साथ आर लगाओ वर लगाओ, ये प्लूरल वर्ब के कैरी कर, लेकिन हमने फिर एक पढ़ा कि अ केटल फॉर्म, भाई अब केटल फॉर्म ना जो नाउन आया सेकंड, जैसा नाउन आएगा फिर केटल फॉर्म हमने क्या लगाया, इस लगा लिया, वोज लगा लिया, क्यों, हम तो आर लगा रहे थे वर लगा रहे थे, लेकिन इस नाउन आ गया वो केटल एडजेक्टिव हो गया, तो इधर वोज जो है एडजेक्टिव हो गया, नाउन आ गया, जैसा टैलेंट्स अगर आ जाए तो प्लूरल लगा लो, लेकिन कैसा भी आ सकता है, तो इस तरीके से मतलब आपको वर्ब लगाना है जो हुज के बाद आए, हुज के बाद जैसा नाउन होगा वैसा वर्ब, क्योंकि अब सब्जेक्ट ये, वैसे भी देखो पार्ट ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट जो होता है, मतलब सब्जेक्ट में जो पार्ट ऑफ स्पीच हम इस्तेमाल करते हैं, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में पार्ट ऑफ स्पीच हम इस्तेमाल करते हैं, वो नाउन होगा, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होगा, नाउन प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव थोड़ी होगा, मिसाल में बोलूं अभी कि गुड इज रिटन ऑन द बोर्ड,
बोलेंगे सर क्या हुआ आज, गुड इज रिटन, क्योंकि अब गुड क्या एडजेक्टिव है और उसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब दे दिया, तो एडजेक्टिव तो होता नहीं है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में तो नाउन आता है, तो कोई नाउन बनाए, गुडनेस लगाएं या गुड राइटिंग लगाएं, कुछ ऐसा करें, ऐसा नहीं किया तो गलत हो गया। इसीलिए तो ये थिंग्स और पीपल दोनों के लिए एक एक और देता हूं, थोड़ा बस जल्दी 4 ऑप्शन इसके देता हूं। मैं बताना कितने सही। एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, हाँ बस जल्दी बताओ। कितने सही हो रहे हैं इसमें, शाबाश, देखो इसमें कितने सही हो रहे हैं। मैंने कहा हुज जो होता है ना, ये पीपल थिंग्स दोनों के लिए लगा सकते हैं, तो देखो अभी थिंग की बात हो गई तो भी हम लगा सकते हैं सही, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव माना दो क्लोज, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने वाला, तो कर रहा है, ये सही हो गया। अब ये जो एक्शन ये है तो पॉजिटिव, ये बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन ये ऐसा पॉजिटिव जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि माय, इज, हर, यूर, डियर, तो मैं अगर खाली इधर माय लिखूं तो वो थोड़ी मना सेंटेंस को ज्वाइन तो नहीं करेगा ना, ठीक है ना। मिसाल में लिखूं आई हैव अ कार, माय कार इज, मतलब कुछ भी ना दो, फुल स्टॉप वगैरह ना दो, ठीक है ना, मतलब ऐसा लिख लूं, आप इधर ही देखो, माय माय कार इज, ओके, माय कार इज ऑन द रोड, ये लिख लिया, मतलब हमने कुछ नहीं दिया, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे सेम ये लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ ये सही होगा। ना आपने सेमीकोलन दिया, ना आपने कंजंक्शन दिया, है ना, ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों एक जैसे, ये नॉन लिविंग को शो करता है, ये लिविंग को शो करता है, तो हम ऐसे थोड़ी मना लिखेंगे, मतलब रिलेटिव वर्ड दें आप, कोई ना कोई इधर कंजंक्शन लिखें, इधर लिखें, तो आपका ये सही होगा, अदरवाइज देखो ये गलत हो जाता है, तो ये नहीं होगा ये, हाँ ऐसा करें, इधर दें फुल स्टॉप, देखो आई हैव अ कार, इट्स कलर इज, देखो अब सही है, अब सही है, सही है, अब गलत नहीं है, कहाँ है ये, हाँ वो ठीक है भले कर दो, ये चलो कर दो भले, लेकिन फुल स्टॉप देकर आप लिखें, माना अब सही है, क्योंकि पॉजिटिव खुद कोई रिलेटिव वर्ड या कंजंक्शन नहीं है कि जो दो सेंटेंस को ज्वाइन कर सके, और ये तो माना दो वर्ब आ गए, सब्जेक्ट एक पढ़ा है, इट इज भी पढ़ा है, और कलर इज भी पढ़ा है, तो ये माना गलत हो गया, ये हुज देखो ये भी माना फिर से गलत है, तो प्लीज आप इनको थोड़ा देख लेना, अब इंशाल्लाह कल और भी इस पे बात करेंगे।